Hello friends, welcome to Danlo. In today's lecture series, we are going to study hurt and grievous hurt, which is defined between section 319 to 338 of IPC 1860. So first we came to know about that. We studied different topics like assault, force, criminal force. So these are the non-fatal crimes. Okay, and fatal crimes are like culpable homicide amounting to murder, culpable homicide not amounting to murder. So these types of crimes are फेटल क्राइम्स, जिसमें जान जाने की खतरा होता है, जिसमें जान जाने की एंडेंजर है कि इसमें जान जा सकती है. पर ऐसे केसेस लाइक हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, so these type of acts are like non-fatal crimes. Okay, these types of crimes are non-fatal crimes. So before starting this lecture, I want to discuss with you something like, अभी जो टॉपिक है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, सो इसको किस सीक्वेंस में हम याद रखेंगे और कौन से सेक्शन को हमको साइड से याद रखना है. हाउ टू रिमेंबर द सेक्शन, सो लेट्स डिस्कस. सो सेक्शन 319 जो है, सेक्शन 319 एंड सेक्शन 320, ये सीक्वेंस में जा रहा है हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट के सीक्वेंस में. सो हार्ट एंड ग्रीवियस हर्ट सीक्वेंस इज हियर. नाउ सेक्शन 320 एंड 322, 321 एंड 322. So 321 voluntarily causing hurt and 322 is voluntarily causing grievous hurt. तो voluntarily causing hurt and voluntarily causing grievous hurt. ओके, तो ये हर्ट और ग्रीवियस हर्ट के सीक्वेंस में अभी तक जा रहे हैं. यहाँ पे अभी नीचे देखे सेक्शन 323 एंड सेक्शन 324. सो यहाँ पे जा रहा है हर्ट, ये दोनों हर्ट का बात करता है. 320, 323 एंड 324 एक साथ पढ़ना है. 323 एंड 324. 323 में बात करता है punishment for voluntarily causing hurt and section 324 talks about voluntarily causing hurt by dangerous weapon or means. Now come to section 325 and 326. Section 325 which talks about punishment for voluntarily causing grievous hurt. Okay, punishment for voluntarily causing grievous hurt. And section 326 talks about voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons or means. Means there is a sequence 390, 320, 321, 322, 323, 324 and 325 and 326 is punishment for voluntarily causing grievous hurt and 326 is grievous hurt means by dangerous weapon. Now come to, so these two section 326A and 326B जो amendment के through आया था, which comes from amendment. So voluntarily causing grievous hurt by using acid or voluntarily throwing or attempting to throw acid. So ये आपको याद रखना है 326, 326A, 326B. ओके, नाउ कम टू अब सीक्वेंस जानते हैं. यहाँ पे क्या है कि 327 आ गया. 327 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और कॉन्स्टेंट टू एन इलीगल एक्ट. तो 327 एंड 329 साथ में पढ़ना है. अभी हम बाहर कर रहे हैं 328 को. 327 एंड 329 ये भी हर्ट का बात करता है और ये ग्रीवियस हर्ट बाय एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी की बात करता है. नाउ कम टू 330 एंड 331 दोनों साथ में पढ़ना है. वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन एंड वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन. ओके, 330 एंड 331 साथ में पढ़ना है. 332 एंड 333. 332 voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty and voluntarily causing grievous hurt. तो hurt और grievous hurt के सीक्वेंस में जा रहा है. तो 332 and 333 साथ में पढ़ना है. Now come to 334 and 335. 334 voluntarily causing hurt on provocation. Voluntarily causing hurt on provocation. So 334 and 335 ये दोनों साथ में पढ़ेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट. लेकिन सेक्शन 336 को भी साइड करेंगे. 336 उसके बाद सीक्वेंस आता है 337 एंड 338 का. यहाँ पे भी हार्ट और ग्रीवियस हर्ट का सीक्वेंस जा रहा है. सो दिस इज द वे यू हैव टू स्टडी दिस सेक्शन एंड रिमेंबर दिस सेक्शन. ओके, नाउ कम टू द बेयर एक्ट लैंग्वेज. सो सेक्शन 319 हर्ट, whoever causes bodily pain to disease or infirmity to any person, it's said to be as hurt. Okay, so bodily pain, disease or infirmity means weakness, basically weakness by using force. Okay, so this type of force like bodily pain or disease or infirmity will said to be as hurt, considered as hurt. Now come to section 320. Section 320 is grievous hurt. Grievous hurt, the following kinds of hurt only are designated as grievous. Okay, so here the basic ingredients provided. So these points, like 8 points is given here. So these 8 points will be considered to be as grievous hurt. Okay, first one is emasculation. Emasculation means it is regarding male
ऑर्गन्स बेसिकली लाइक दिस इज़ अ मेल एंड इसके दो टांगों के बीच में किसी ने मार दिया है, तो इसके जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उसमें अगर चोट आई है, अगर किसी ने प्राइवेट ऑर्गन्स को स्क्वीज कर दिया है या पिंच कर दिया है, सो स्क्वीजिंग और पिंचिंग ऑफ द प्राइवेट ऑर्गन्स इज लाइक इमैस्कुलेशन, आर पार्ट ऑफ इमैस्कुलेशन. सो कम टू द सेकेंड, permanent privation of the sight of either eye, permanent loss of sight of either eye. Okay, so it will be considered as a grievous hurt. Third one is permanent privation of the hearing of either ear, permanent loss of hearing of either ear is said to be as a grievous hurt. Fourthly, privation of any member of joint. Okay, joint loss, okay, means any member of joint will damage, then it will be considered to be a grievous hurt. Fifthly, destruction or permanent impairing of the powers of any member of joint, means डिस्ट्रक्शन और परमानेंट फ्रैक्चर हो जाना, इट्स लाइक परमानेंट डिस्फ्रैक्शन हो जाना. तो ये हड्डियों के अगर टूटने से या फिर हड्डियों को इम्पेयरिंग से या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाना, तो ऐसे कहा जाता है कि इस केसेस में ये एक कंसिडर किया जाएगा ग्रीवियस हर्ट में. ठीक है. सिक्सथली, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस को खराब कर देना, मीन्स डिसफिगरेशन ऑफ फेस, इट विल बी सेड टू बी एज अ ग्रीवियस हर्ट, कंसिडर टू बी एज अ ग्रीवियस हर्ट. ओके. सेवेंथली, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, दांतों को तोड़ देना और फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ टूथ और बोन, हड्डियों को तोड़ना, इट विल सेड टू बी एज अ कंसिडर्ड टू बी एज अ ग्रीवियस हर्ट. एट्थली, एनी हर्ट विद इंडेंजर द लाइफ ऑफ विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द 21 डेज के लिए अगर कोई बॉडली पेन से ग्रसित है, अगर किसी ने उसके ऊपर फोर्स, क्रिमिनल फोर्स अप्लाई किया है, वो बहुत ज़्यादा ही ग्रीवियस नेचर के हैं, तो इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज ग्रीवियस हर्ट. थर्ड, 321 एंड 322 दोनों साथ में ही पढ़ना है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है. 321, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ देयरबाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, विद द इंटेंशन ऑफ देयरबाय कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विथ नॉलेज दैट ही इज लाइकली thereby to cause hurt to any person and does thereby cause hurt to any person is said to be voluntarily to cause hurt. देखो, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट को वॉलंटरली करना बहुत ज़रूरी है. वॉलंटरली आपको आईपीसी में डिफाइन है. सो वॉलंटरली मीन्स विलफुली, खुद से, मीन्स किसी को आपने फोर्स अप्लाई किया, क्रिमिनल फोर्स, जो कि बहुत ग्रीवियस है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में चल जाएगा. और हर्ट में जैसे कि आपने किसी को इन्फर्मिटी पहुंचाया है या किसी को डिजीज पहुंचाया है, जो कि इंटेंशन के साथ और नॉलेज के साथ पहुंचाया है, तो देयर इज अ विलफुली, देयर इज अ वॉलंटरली, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी वॉलंटरली टू कॉज हर्ट. ओके. एंड 322, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट करने का मतलब है कि विलफुली ग्रीवियस हर्ट, किसी मतलब वो ग्रीवियस ज़्यादा है, जो हर्ट, जो चोट आपने पहुँचाया है, वो चोट कहीं ना कहीं ज़्यादा है, दैट हर्ट इज grievous. Whoever voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes or grievous hurt is said to be voluntarily cause grievous hurt. Okay, whoever voluntarily causes hurt, if the hurt will he intends to cause or knows himself to be likely to cause grievous hurt, and if hurt which the causes grievous hurt is said to be, means voluntarily causes grievous hurt. Explanation is here. A person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when the both cases of grievous hurt and intends knows himself to be likely to cause grievous hurt, but he is said voluntarily to cause grievous hurt if intending or knowing himself is to be likely to cause grievous hurt of one kind, he actually causes grievous hurt of another kind. Okay, so here like example is provided: A intending of knowing himself to be likely permanently to disfigure Z's face. Okay, A intending, knowing, intending means intention involve है, जान भी रहा है हर चीज़ को कि जेड का फेस जो है डिसफिगर हो जाएगा, likely permanently to disfigure Z's face. Gives Jade a blow. Okay, which does not permanently disfigure Z's face. अब जेड का फेस परमानेंटली ए के ब्लो से जेड का जो फेस था वो परमानेंटली डिसफिगर नहीं हुआ, बट विच कॉजेज जेड टू सफर सीवियर बॉडली पेन फॉर द स्पेस ऑफ 21 डेज. 21 दिनों तक सीवियर बॉडली पेन हुआ, जैसे कि 8th पॉइंट आपने पढ़ा होगा ग्रीवियस हर्ट का, उसमें बताया गया है. सो देयर इट हैज़ बीन सेड लाइक 28 डेज के लिए सीवियर बॉडली पेन में अगर कोई रेस्ट है बंदा, तो वो एक ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा. तो ए हैज़ वॉलंटरली कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट. सो कम टू सेक्शन 323 एंड 324. अभी तक हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट में चल रहा था, अब हर्ट का सीक्वेंस आएगा.
जैसे कि मैंने आपको बताया है 323 एंड 324 ये हार्ट के सीक्वेंस में आएगा। पहला 323 में बताया गया है पनिशमेंट जो है 1 साल का है और 1000 रुपये फाइन है, ठीक है। फर्स्ट में पनिशमेंट 1 ईयर का है, 1000 फाइन है, ओके। एंड इट लाइक पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, तो ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल आप आसानी से ले सकते हैं। ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट, किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल किया जा सकता है। और वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, अगर किसी को हर्ट कर रहे हो बाय डेंजरस वेपन और मीन्स के थ्रू, देन यहाँ पे जो सज़ा है वो 3 साल का है, याद रखना आप। हियर द पनिशमेंट इज ऑफ 3 years एंड फाइन भी हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं फाइन भी हो सकता है, कॉग्निजेबल है, पर दिस इज नॉट बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ओके। अगर आपने डेंजरस वेपन के साथ हर्ट किया तो ये नॉन बेलेबल है, याद रखिएगा। सेक्शन 325 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। 325 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट में ये कहा गया है हियर द पनिशमेंट इज इम्प्रिजमेंट फॉर 7 years, 7 years के इम्प्रिजमेंट है एंड फाइन भी है इसके साथ। इसमें अगर आप वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट करते हो तो इसमें पनिशमेंट है 7 साल का और फाइन है, एंड ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है ये, एंड ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये ग्रीवियस हर्ट की सीक्वेंस चल रहा है, 25, 26 ग्रीवियस हर्ट और 26 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन। अब है ग्रीवियस हर्ट किस चीज़ से करना है, ग्रीवियस हर्ट किस चीज़ से करना है, डेंजरस वेपन से, डेंजरस वेपन से। तो यहाँ पे 10 years का सजा है आपको इम्प्रिजमेंट, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक। आपको याद होना चाहिए ये नॉन बेलेबल है, ओके। और इसमें फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनके द्वारा ट्राइबल होगा ये 326 के जो सेक्शन है, जिसमें डिफाइन किया गया है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन, मीन्स डेंजरस वेपन के द्वारा ग्रीवियस हर्ट अगर कर रहे हो तो। नाउ कम टू सेक्शन 326A एंड 326B। आपको याद होना चाहिए ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है 326A एंड 326B। सो सेक्शन 326A इज वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, बाय यूज ऑफ एसिड। सो whoever causes permanent or partial damage or deformity to or burns or maims or disfigures or disables any parts of the body of person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid, by throwing acid or by administering acid to the person or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for the term which shall not be less than 10 years। अब यहाँ पे बता देते प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल जस्ट रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। बेसिकली अगर कोई एसिड थ्रो करने का कोशिश कर रहा है, एडमिनिस्टर करने का कोशिश कर रहा है और उससे अगर किसी को हर्ट हो जाता है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो उसमें सज़ा है नॉट लेस देन 10 years। अगर और भी ब्रूटलिटी के साथ किया है एसिड थ्रो किसी को, तो इसमें सज़ा लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी हो सकता है और होगा इसमें। एंड इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें मेडिकल जो एक्सपेंसेस हैं, ट्रीटमेंट जितना होगा वो विक्टिम का जो ट्रीटमेंट होगा वो अक्यूज्ड को देना पड़ेगा, जो कन्विक्टेड है उसको पूरा एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फाइन इम्पोज्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम, ओके। एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड रेज द फंड इन दिस केस एंड द हियर द पनिशमेंट एज यू नो 10 years पनिशमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे एसिड अटैक जो होते हैं, जो ग्रीवियस हर्ट के अंदर डाला गया, इसमें क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें ट्रीटमेंट के लिए पैसे देती है, जो ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होता है। नाउ कम टू सेक्शन 326B, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटैम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। अगर कोई वॉलंटरली विलफुली अगर कोई कोशिश कर रहा है एसिड फेंकने का, कोशिश कर रहा है किसी के ऊपर, अटैम्प्ट ही कर रहा है, तो whoever throw or attempt to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent or partial damage or deformity। देखिए इसका इंटेंशन क्या है यहाँ पे, here the intention is causing permanent partial damage, permanent partial damage और deformity, okay। सो और बर्न्स और मेमिंग, डिफॉर्मिटी
बर्न्स और मेमिंग और डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी or grievous hurt to that person shall be punished with imprisonment of the description 4. Like here the punishment is high for a term which shall not be less than 5 years. अगर आपने अटैम्प्ट भी केवल किया है 5 साल से कम का तो सज़ा नहीं मिलेगा आपको, and it can be extended to 7 years and shall also be liable for fine. Okay. So explanation 1 is here for the purpose of section 326A and this section acid includes any substance. एसिड अटैक की तो बात कर ली गई है, 326A में बात किया गया जिसमें सज़ा दे रहा है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से लेकर 10 साल तक, 10 साल से नीचे तक नहीं जा सकता है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का दिया गया। अब 326B में जैसे ही पढ़ते हैं उसमें बताया गया, उसके एक्सप्लेनेशन में उसमें बताया गया 5 से 7 साल के बीच में सज़ा होगा और फाइन के साथ, और फाइन तो इसमें भी दिया जाएगा, वो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट पे डिपेंड करता है और इंजरी कितना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, फाइन और मेंटेनेंस जो भी चार्ज दिया जाएगा उसकी विक्टिम को। सो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये कहता है, अब बात करता है कि एसिड होता क्या है। सो एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A 326 को लेकर बताया गया है, दिस सेक्शन एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज़ एसिडिक और कोर्सिव करेक्टर, जिसका नेचर एसिडिक है, कोर्सिव करेक्टर है और बर्निंग नेचर है। मान लिया जाए कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि बॉडी पे पोर होते ही वो बॉडी को बिल्कुल तरह से बर्न कर देता हो या फिर डैमेज कर देता हो। सो डैट इज़ कैपेबल ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी लीडिंग टू स्कैर्स छोड़ देता हो, कोई निशान छोड़ देता है चेहरे पे, पुट ओके, डिसफिगरमेंट और टेम्पररी और परमानेंट डिसेबिलिटी। सो कम टू एक्सप्लेनेशन 2 इज हियर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A and this section permanent or partial damage or deformity shall not be required to be irreversible. Okay. Now come to section 327, voluntarily causing hurt to extort property or to consent to an illegal to an act. अब क्या है यहाँ पे कि किसी से voluntarily 327 जो है 327 में क्या है कि फोर्सफुली किसी से काम करवा रहा है, इलीगल एक्ट करवा रहा है या फिर एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी के लिए अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट किया है, तो ऐसे केसेस में जो ऑफेंस है, जो इम्प्रिजमेंट, जो इसमें जो ऑफेंस है, जो कि पनिशमेंट इसमें दिया गया है, वो पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फॉर 10 ईयर्स। पनिशमेंट इज हियर 10 ईयर्स। अगर कोई आपको हर्ट करता है एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी के लिए या फिर कोई इलीगल काम करवाने के लिए, तो इसमें पनिशमेंट है 10 साल का, नॉन बेलेबल है, जैसे कि आप जानते हो ट्राइबल बाई फर्स्ट क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट ट्राइबल करेगा। एंड 327 यहाँ पे बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। अब आते हैं 329, क्योंकि 327 एंड 329 साथ में पढ़ना है, इसके बाद 328 पढ़ेंगे, बाद में पढ़ना है 328, क्योंकि ये सीक्वेंस में चल रहा है। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कॉन्स्टेंट टू एन इलीगल एक्ट। अब आ गया हर्ट, ग्रीवियस हर्ट आ गया ना, तो इसमें क्या है, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी या फिर कोई इलीगल मीन्स फोर्स समबडी टू डू एन इलीगल एक्ट। ओके, सो इन दिस केस the punishment is here like imprisonment for life. imprisonment for life 10 साल से तो नीचे मिलेगा नहीं, इतना तो पता है, तो 10 ईयर टू imprisonment for life, लाइफ imprisonment तक का यहाँ पे सजा है 329 में। 327 voluntarily causing hurt to extort property or to consent to an illegal act and 329 is voluntarily causing grievous hurt to extort property or to consent to an illegal act। समझ गया? इसमें सजा आपको मोटा मोटी याद रखना है कि पनिशमेंट जो दिया गया 10 साल से लेकर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक दिया गया है। सो नाउ कम टू सेक्शन 328। सेक्शन 328 अकेला है बिल्कुल, मीन्स यहाँ पे ये सेक्शन बिल्कुल अलग है, क्योंकि 327 से सीक्वेंस आ जाता है 329 में, 328 में कुछ और बताया गया है। 328 में बताया गया है कि कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन, कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन और एटसेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। ओके, अब पॉइजन सब्सटेंस, जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है, उससे अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना, ओके, तो इसमें सजा है 10 साल एंड इम्प्रिजमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, और नॉन बेलेबल है, ठीक है। सो अब इस केस में 10 ईयर्स का है, फाइन हो जाएगा, 10 ईयर्स का पनिशमेंट है, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट 10 ईयर्स फाइन है। ओके, तो 328 कॉजिंग हर्ट बाय मीन्स ऑफ पॉइजन। 330 voluntarily causing hurt to extort confession or to compel restoration of property। अब 330 और 331, 330 में बात करता है voluntarily causing hurt to extort
कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन, किसी को कन्फेशन के लिए या फिर कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए किसी को वॉलंटरली हर्ट करना, तो ऐसे केस में आपको जो पनिशमेंट है जो कि 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट है, 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट है, ठीक है, 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट है, फाइन है, पर ये जो ऑफेंस है ना, पर ये दिस इज अ बेलेबल काइंड ऑफ ऑफेंस, ओके, दिस इज अ बेलेबल काइंड ऑफ ऑफेंस, यहाँ पे बेल आपको मिल सकता है, ठीक है, बेलेबल ऑफेंस है। A police officer tortured Jade in order to induce Jade to confess that he committed a crime. Means a police officer wants confession. What? That Jade should confess that he has committed crime. Then A is guilty of the offense under this section. और इस सेक्शन में जेड यहाँ पे गिल्टी होगा, गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, जो सेक्शन 330 में है, क्योंकि यहाँ पे कन्फेशन की बात किया है, कन्फेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पे कन्फेशन है, कन्फेशन के लिए यहाँ पे हर्ट कर रहा है पुलिस वाले, ये जो पुलिस वाले हैं ए, वो हर्ट कर रहे हैं जेड को कि कन्फेस कर ले कि तूने क्राइम किया है, ठीक है। बी, अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर्ड बी टू इंड्यूस हिम टू पॉइंट आउट वेयर सर्टेन स्टोलन प्रॉपर्टी इज डिपॉजिटेड। ए पुलिस ऑफिसर है जो टॉर्चर कर रहा है बी को, जैसे यहाँ पे है ना रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अब पुलिस ऑफिसर के पास केस गया, पुलिस के पास केस गया होगा ऐसा, तो पुलिस ने ए जो है, अब यहाँ पे ए जो पुलिस ऑफिसर है बी को बोल रहा है कि तू कन्फेस कर ले कि तेरे पास जो चुराई गई जो प्रॉपर्टी है, डिपॉजिटेड किया है, वो तेरे पास ही है। तो ये कन्फेशन भी ये रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए या सर्टेन प्रॉपर्टी जो उसके लिए, सो ये क्या होगा, ए इज़ गिल्टी एंड ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। A revenue officer tortures Jade, a revenue officer है tortured Jade in order to compel him to pay certain arrears of revenue due, so यहाँ पे compel कर रहा है, फिर वही किसी प्रॉपर्टी को लेकर, किसी arrears को लेकर, ठीक है। सेक्शन 331 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रजिस्ट्रेशन, अगर इसमें क्या होगा 331 में, 331 है बेसिकली यहाँ पे पनिशमेंट है 10 years, पनिशमेंट है 10 years 331 में, 10 years का पनिशमेंट है। एंड 331 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन की बात करता है कि कोई वॉलंटरली अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहा है, चोट पहुंचा रहा है, जो कि ग्रीवियस हर्ट के जितने भी 8 पॉइंट्स हैं उनमें शामिल होता है, किस लिए, कन्फेशन के लिए या फिर कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, तो ऐसे केसेस में 10 साल का सजा है, नॉन वेलेबल है। 330 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, ये नॉन वेलेबल है, ठीक है। 332 and 333 voluntarily causing hurt to debtor public servant from his duty, voluntarily causing hurt to debtor public servant from his duty, ओके, अगर voluntarily hurt कर रहा है किस लिए, पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी करने से रोकने के लिए, so whoever voluntarily causing to hurt any person being a public servant in discharge of his duty as such public servant or with intent to prevent or deter that person or any other public servant from discharging his duty and shall public servant or in the consequence of anything done or attempted to be done by that person in the lawful discharge of his duty, and such public servant shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extended to 3 years। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट है 3 years का पनिशमेंट है, याद रखिएगा। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट अगर करते हो किसी पब्लिक सर्वेंट को उसका ड्यूटी के समय में ही उसको रोकने के लिए, कोई डेटर करने के लिए, तो इसमें 3 साल का सजा है, याद रखना। अगर 3 साल का है तो ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो ये 3 साल का है तो यहाँ पे ये जो ऑफेंस है नॉन बेलेबल है। सो एंड 333 में यही जो कि ग्रीवियस हर्ट के साथ होगा, तो 333 में बताया गया इसका पनिशमेंट है 10 years, ओके, पनिशमेंट इज 10 years हियर इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, हियर द पनिशमेंट इज 10 years, कॉग्निजेबल है and non-bailable. Now come to section 334 and 335 voluntarily causing hurt on provocation, voluntarily causing hurt on provocation and voluntarily causing grievous hurt on provocation, both are of same nature, but here the first one is hurt and second one is grievous hurt, somehow same nature, so punishment is different. Under the case of voluntarily causing hurt by provocation, whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of the description for a term which may extend to 1 month or fine. सो प्रोवोकेशन में किसी ने किया है तो यहाँ पे बहुत कम ही सज़ा, बहुत कम सज़ा है, यहाँ पे 1 month का सज़ा है और फाइन का प्रावधान है, ठीक है। बट अगर
आप वॉलंटरली करते हो क्या, ग्रीवियस हर्ट प्रोवोकेशन में, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सज़ा है इम्प्रीजमेंट ऑफ द डिसीजन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 4 years, मीन्स इम्प्रीजमेंट इज हियर ऑफ 4 years, ओके, और फाइन, and fine can be extended to 2000 rupees under case of voluntarily causing hurt on provocation. 336 act endangering life or personal safety of others. Act endangering life or personal safety of others. Whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or a personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for a term विच में एक्सटेंडेड टू 3 months और विथ फाइन. यहाँ पे क्या है, 3 months और फाइन देने का प्रावधान है, क्योंकि ये जो एक्ट है जो इंडेंजर कर रहा है किसी का पर्सनल सेफ्टी को लेकर, किसी व्यक्ति का अपना पर्सनल सेफ्टी होता है और उस पर्सनल सेफ्टी को इंडेंजर करना रैशली और नेग्लिजेंटली endanger human lives or personal safety of any human being, then it will be considered to be as a hurt or grievous hurt, so shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 months. 3 months तक का सजा होता है, फाइन का प्रावधान है which may extend to 2000 rupees. Okay. So come to section 337 and 338. जैसे कि मैंने आपको बताया था, I said to you before that you have to study these two sections are under sequence 337 and 338. So causing hurt by act endangering life or personal safety of others. Whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life को खतरे में डालकर और a personal safety of others shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 6 months. आप कोई ऐसा एक्ट नहीं कर सकते जिससे किसी और का नुकसान हो, ठीक है, किसी और का लाइफ को इन डेंजर में आप नहीं डाल सकते. यू कैन नॉट पुट एनीबॉडीज लाइफ अंडर इन डेंजर. ओके, सो एक्ट सो रैशली नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन और अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months. सो हियर the punishment is of 6 months. Basically you have no any right to endanger anybody's life. Okay, if you are putting endanger anybody's life and if he or she cause any hurt, so there is a punishment of 6 months. Okay, and the fine which can be extended to 500 rupees, remember. Now come to section 338. Section 338, causing grievous hurt. This is about the hurt. Now come to grievous hurt. Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others. Causing grievous hurt by act endangering life or personal safety of others. Whoever causing grievous hurt to any person by doing any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of, means gravity of offence. Here the gravity of offence is high, gravity of crime is high. So the act which is like endangering the life of that person, so that act gravity is high, so the punishment is high. That's why it is so called as a grievous hurt by making endangering the life of others. Okay, so under this there is a punishment which can be extended to 2 years and fine of 1000 rupees. Okay, so thanks for watching. This is Deepak Anandan signing off.